शब्दों से न करना किसी के वजूद की पहचान, हर कोई इतना कह नहीं सकता। जी हाँ, आज क्लास में आप सबके सामने मैं हूँ डॉक्टर मनीष कुमार शशि। जी। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। कहा गया है ना, समझने वाले खामोशी भी समझ लेते हैं, ना समझने वाले जज्बातों का भी मजाक बना देते हैं। About William Shakespeare. William Shakespeare was an English poet, playwright, and actor, widely regarded as the greatest writer in English language and the world's greatest dramatist. He is often called England's national poet and Bard of Owen. Find out Bard. 26 April 1564, Stratford upon Avon, United Kingdom. Died 23rd April 1616, Stratford upon England. Shakespeare is Shakespeare's real name. His father's name was John Shakespeare. He married Anne Hathaway in 1582 and a daughter was born. Many people believe William Shakespeare as the best British writer of all time. His many works are about life, love, death, revenge, grief, jealousy, murder, magic, and mystery. He wrote the blockbuster plays of his day. Some of his most famous are Macbeth, Romeo and Juliet, Hamlet, Othello, King Lear. He wrote 154 sonnets, 37 plays, drama. कहा गया है ना, मुझसे दूर जाना है तो चले जाओ, पर मेरा दिल लौटा के जाओ। अक्सर मैं बचपन में प्यार के संबंध में सुनता रहता था, सुन पगली तुम्हारी फिक्र है, शक नहीं, तुम्हें कोई और देखे ये किसी का हक नहीं। नेचर ऑफ ट्रू लव। नेचर ऑफ ट्रू लव। Shakespeare was both a poet and a dramatist. His greatest work was in the realm of drama. He wrote 37 dramas in all. His finest lyrics are those that adore his plays. He attempted 154 sonnets as well. Most of his sonnets are addressed to a young man. A few of them are written about a dark lady. The number of his lyrics is about 100. His lyrics present a variety of mood and interior. Some of these poems create fun only, but some of them discuss deepest question of life and death. Milton's phrase, natives would note wild, some of their characters best. The subjects and tone of these lyrics are English. They are toned into the sweetest bird thought. They follow their own rules in their structures. Some of his best lyrics are, O mysterious mind, where are you roaming? We talk about this poem introduction. The Marriage of True Minds is 116th sonnet which defines the nature of true love. Love is like a gift of nature. Love means mixing up of two hearts and minds in one.
It is external, not internal. फर्क था हम दोनों की मोहब्बत में। मुझे मुझे उससे ही थी और उसे मुझसे भी थी। यही फ़र्क हम दोनों के प्यार में था। बचपन में मेरा एक दोस्त अक्सर कहता था, प्यार क्या होता है हमें पता था, बस तुम दिखे हमें और हम खो गए। यही तो प्यार था, खो जाना ही प्यार है। Here some important words and we try to understand. It will be better to concise and understanding about the poem. Some things are try to understand what's. Now, stanza wise illustration of the poem in English and Hindi. It means bilingual. Try to understand. First, you follow the lines and the first stanza of The Marriage of True Minds by William Shakespeare. Try to understand, and all of you listen carefully and just search the real truth, the real meaning, and if we find out the real meaning, then it's change our life. Try to understand. Let me not the marriage of true minds admire impediment. Love is not love which alters when it alteration find, or bend with the remover to remove. It's in the sustains भावार्थ। कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर इन पंक्तियों में कहते हैं, सच्चा प्रेमी अपनी प्रेम के लिए जीता और मरता है। दो दिलों के मिलन में कोई भी बाधा रुकावट नहीं डाल सकता। बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी एक सच्ची प्रेम के मार्ग में कभी भी बाधा का कार्य नहीं कर सकती। अब हम लोग इसके सेकेंड स्टैंजा को समझने का प्रयास करते हैं। ओ नो, it is an ever fixed mark that looks on tempest and is never shaken. It is the star to every want ring spark, whose wraths unknown although his height be taken. Try to understand the substance of the second stanza. सच्चा प्यार ध्रुव तारा की भांति हमेशा स्थिर रहता है। एक स्थिर चिन्ह के समान वो कांस्टेंट होता है। इस पर समय और अन्य बाधाएं कोई भी प्रभाव नहीं इस पर डाल सकती, नहीं पड़ता है। यह हमेशा अपरिवर्तित ही रहता है। इसकी पहचान है अपरिवर्तनशील होना। हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेंजा को समझने का प्रयास करते हैं। इन सोनेट द थर्ड स्टेंजा, लव्स नॉट टाइम्स फुल दो Ruchi lives and chicks within his band's sickles compasses come. Long alters not with the brief hours and weeks, but bears it not even to the age of dumb. In this be error, and upon be proved, I never ate, nor no man ever loved. इस स्टेंजा में कवि और नाटककार शेक्सपियर के भावार्थ को देखते हैं। जब भी ये लाइन हम लोग फॉलो कर रहे थे तो यहाँ इस सस्टेंस में ये प्राप्त करते हैं कि कवि महसूस करता है प्यार समय का वो भूखा नहीं होता। यह खेल का विषय तथा मजाक का विषय भी नहीं होता। इसमें खेल और मजाक कदापि नहीं होते। समय कभी भी इसके मार्ग में हिंड्रेंस बाधा नहीं बन सकती। यह हमेशा एक समान रहता है।
कवि शेक्सपियर महसूस करते हैं कि वह बहुत भ्रमण किए हैं, दूसरों से संपर्क भी साधे हैं और उनसे मिलकर के उन्होंने इसका आनंद लिया है। क्लियर सा मैसेज है कि समय हमेशा अपरिवर्तनशील रहती है प्यार में। इसमें गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, बहुत सारी जो बाधाएं हैं समाज की, वो प्यार के बीच कभी नहीं आ सकती, वो व्यापार के बीच आती है। प्यार में हमेशा अपरिवर्तनशील ही होना होता है। ये प्यार की सबसे बड़ी निशानी होती है। एक क्वेश्चन आपने किया है, कैन टाइम एफर्ट लव? इसका रिप्लाई ये है, नो, टाइम कांट एफर्ट लव। टाइम कैनॉट क्रिएट एनी सस्टेन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ ए लव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एक्सटर्नल फोर्स चेंज लव? नो, external force can't change it. External force like time and absence have no effect on true love. It continues unchanged forever. It is called love. Love means love. No business here. मेरे पिताजी बचपन में अक्सर ये बातें हम लोग को सबक के रूप में सिखाया करते थे। वो कहते थे, ज़िंदगी एक बार मिलती है, यह बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, ज़िंदगी तो हर रोज़ मिलती है। वाकई उनके सबक आज भी स्मरण हैं। हम लोग इस लेसन के कुछ मेन पॉइंट्स को समझने का भी प्रयास करते हैं कि शेक्सपियर आखिर कहना क्या चाहते हैं। वो बिल्कुल एक मैसेज दे रहे हैं, सच्चा प्रेम अमर रहता है, बाधा से विकास की तरफ जाना ही सच्चा प्रेम है। वास्तविक प्यार जीवन के अंतिम पल तक बनी रहती है, अंतिम सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड तक बनी रहती है। समुद्र में जब तूफान आ रहा होता है तो समुद्र के अंदर एक कृत्रिम लाइट हाउस की व्यवस्था वहाँ हम लोग देखते हैं। वो तूफान, टेम्पेस्ट के समय उस जहाज़ को वो लाइट गाइड करती है, मार्गदर्शन देने का कार्य करती है। वैसा ही हमारा प्रेम होता है, वो पोल स्टार, ध्रुव तारा के समान होता है। ये अलग बात है कि 76 ईयर के बाद वो दिखे, बट जितने साल के बाद भी वो दिखता है साइंस के अनुसार, लेकिन कांस्टेंट होता है। उसकी मेरिट जो है वो कांस्टेंट होना ही है। वैसे ही प्यार, वही है लव जो हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहे। व्यापार में ये सारी चीज़ें होती है, प्यार में कदापि नहीं होती। प्रेम बंधन न हो, एक नियम है, भावना है, ये शाश्वत सत्य है। प्रेम गति करता है, मोशन में होता है। जो आप ध्रुव तारा को देखते हो, उसमें दिशा कभी नहीं, उसके बदलाव कभी हम नहीं देखेंगे, चाहे अमीरी में रहें, गरीबी में रहें। प्रेम की दिशा भी कभी नहीं बदलती। प्रेम एक शक्ति होती है, उसमें तुलना हम कभी नहीं कर पाएंगे। ये व्यापार नहीं है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में राधा और कृष्ण का एग्जाम्पल, लैला मजनू का भी एग्जाम्पल दे देते हैं। ताजमहल को भी हम लोग प्यार की निशानी के रूप में रखते हैं। पशु पक्षियों के भी प्रेम भी हम लोग देखते हैं। एनिमल्स प्रिजन, जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था एनिमल्स इन प्रिजन, उसमें ये बातें स्पष्ट रूप से उन्होंने दिखाई भी है। सामाजिक दुनिया में आए, फिल्मों की दुनिया में आए, तो विवाह एक मूवी है, वहाँ भी हम लोग ये देखते हैं। यही कारण है कि शेक्सपियर की जब 400वीं जयंती मनी थी तो पूरे विश्व में ये धूमधाम से मनी थी। उन्होंने जो कुछ हमें सिखलाया है उसमें वास्तविकता है, और इस चीज़ को समझना ही प्यार है। इस चीज़ को हमें हमेशा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहना चाहिए। मैं बचपन में अक्सर सुना करता था,
मैं ठहर गया, वो गुजर गई। वो क्या गुजरी, सब ठहर गए। इस लेसन में जो मुख्य बातें हैं वो ये हमें समझने का प्रयास करना है कि यहाँ शारीरिक संबंध, सुंदरता, समय, समर्थ के बीच किस तरह के तालमेल स्थापित करने का प्रयास कवि के द्वारा हो रहा है। कभी गलत साबित कर दो तो मैं लिखना छोड़ दूंगा, ये आखिरी लाइन विलियम शेक्सपियर ने इस लेसन में स्पष्ट रूप से कहा है। ये भी हमें समझने का प्रयास करना है कि प्यार को वो कितना पवित्र पायस मानते हैं। जैसे इंडिया में लोग गंगा माँ की पूजा करते हैं पवित्रता के साथ, उस तरह की पवित्रता उन्होंने इस लेसन में क्लियरली मेंशन किए हैं। कहा गया ना, जिंदगी जीने के लिए बनी थी, जिंदगी जीने के लिए बनी थी, हमने सोचने में गुजार दी। इसलिए जो जीवन मिला है उस जीवन में जो शेक्सपियर हमें समझा रहे हैं वो समझने का प्रयास करना चाहिए कि कोई भी कार्य करें उसमें प्यार का तात्पर्य हम समझने का स्पष्ट प्रयास करें। वहाँ बिजनेस, चीटिंग, धूर्तई ये सब उसको बर्बाद कर देती है। इसलिए प्यार मतलब प्यार होता है, उसमें समय कोई बाधा नहीं होती, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी कभी भी नहीं होती। कहा गया है ना कि हमेशा कान, आँख, नाक, मुंह पर भरोसा रखना चाहिए, किसी चीज़ की सच्चाई का पता लगाना चाहिए, तभी वो सत्य प्रमाणित हो पाएंगी। शेक्सपियर जी काफ़ी तन्मयता से अपनी बातों को कह पा रहे हैं। जो कुछ कहे हैं वो बिल्कुल एक मैसेज के रूप में, संवाद के रूप में आप सबके सामने है। वो कहते हैं, उनके द्वारा रचित ये सोनेट है, सोनेट की मेरिट हम जान चुके हैं, 14 लाइन्स वो होती है। शेक्सपियर एक महान नाटककार, वो कवि थे। यह कविता में कवि ने सच्चा प्रेम को परिभाषित किया है। सच्चा प्रेम प्रकृति का देन होता है। कवि कहते हैं, सच्चा प्रेम मात्र शारीरिक संबंध का ही नहीं होता। कवि महसूस करते हैं कि प्रेम केवल समय का भूखा नहीं होता, यह केवल एक खेल नहीं है और केवल मजाक का ये विषय नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम अपना मार्ग कभी नहीं बदलता, मार्ग कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। कठिनाइयाँ भी इसे रोक नहीं सकते। एक सच्चा प्रेमी के मार्ग को कोई नहीं रोक सकता। यह ध्रुव तारा के समान अटल है। प्रेम अक्षुण्ण नहीं है, बल्कि यह टिकाऊ होती है। यह समय और परिस्थितियों में ये बदलाव नहीं दिखता, यह शाश्वत होता है। ये ध्रुव तारे की जो मेरिट है वैसा होता है, जैसा कि हम समुद्र में तूफान के समय भी देखते हैं कि किस तरह वहाँ की जो लाइट, कृत्रिम लाइट है, उसका गाइडलाइन करते हुए, उसे मार्गदर्शन देते हुए, उसे बाधा के बीच नहीं छोड़ती है। प्यार का वास्तविक अर्थ यही होता है, जो समय इसे कोई इसमें बदलाव नहीं ला पाती। शेक्सपियर ये चीज़ें समझाने का स्पष्ट प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते, आवाज़ अगर तुम न दो तो वो बोलते भी नहीं। इस तरह के रिश्ते बदल रहे हैं, लेकिन शेक्सपियर के समय ये अपरिवर्तनशील थे। प्यार मतलब प्यार, रिश्ता मतलब रिश्ता, वो वही चीज़ हम लोग को वो सिखा रहे हैं इस लेसन में। इस लेसन को जब हम पढ़ते हैं तो क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर की वाइफ अंजलि भी याद आती है, क्योंकि सचिन ने सच्चा प्यार किया था। सचिन की तरह शेक्सपियर की वाइफ भी उनसे उम्र में 8 साल बड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस बंधन को बखूबी निभाया। सच्चा प्रेम का अर्थ हम देखते हैं। यदि हम बात करें इनकी, तो ये भी पाते हैं कि 8 बच्चे में तीसरे नंबर पे ये थे, लेकिन कुछ दुनिया को वो दे के गए। वो समर्पित जो अट्रैक्टिव यंग मैन को दिखा रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ प्राप्त
कर भी रहे हैं, कवि और नाटककार को स्पष्ट देख भी पा रहे हैं। कहा गया है ना कि हर वक्त खुद से ज़्यादा रुलाता है वो, हम सपने में भी जिसे रोने नहीं देते। अब हम लोग प्रयास करते हैं इसका समरी समझने का। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज ए सोनेट बाय शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट पोएट and playwright in English. In this poem, the nature of true love is like a gift of nature. The poet says that true love is not mere physical attraction. The poet has now realized that love is not time's fool. It is not subject to the spot and mockery of time. A true love does not change his mind. Great trouble can't change the attitude of a true lover. A true lover stands like a pole star. External forces might not change love. Love is not for time being, but it is beyond the time and circumstances. Love is external. Love is external. Try to understand the main gist of this lesson. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आप कायदे से समझ पा रहे होंगे। एक दोस्त की बातें मैं शेयर करना चाहूँगा। वो अक्सर कहता था, रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। माताजी की बातें, कितना भी खुश रहने की कोशिश करो, लेकिन सच में जब कोई याद आता है ना तो बहुत रुलाता है। इस लेसन की समाप्ति के पूर्व मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, कुदरत का नियम तोड़ोगे तो सज़ा मिलेगी ही। हम लोग अगले लेसन को अगले क्लास में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आज इस लेसन की मेन बातें क्लियर हो गई हैं। चलते चलते जय हिंद।